Welcome dear friends again to my channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips. This is actually lecture 31 of my series. तो dear friends, मैं आप लोगों को बेसिकली जब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो after the detailed field investigation has been done and the laboratory tests have been prepared, so for any proposed civil engineering structure we have to calculate the bearing capacity as per shear criteria, and then further we have to calculate the settlement, because any bearing capacity being calculated after shear criteria is to be checked for the settlement criteria, which is the final governing criteria for recommendation of safe bearing capacity for any respective proposed civil engineering structure. May it be building, multi-story towers, overhead tanks, bridges, and any structure whatsoever it may be. So the role of water table, its role and effects in foundation engineering is very important while doing these calculations, bearing capacity calculations and settlement calculations. How? जब भी हम फील्ड पे जाते हैं तो हम फील्ड पे फर्स्ट नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल मेजर करके लाते हैं. Whatsoever it is encountered during field investigation, जिसको मैंने बता रखा है कि it is usually measured after waiting for 24 hours after the completion of the desired depth of borehole being explored at the site. अब क्या होता है, जो भी वाटर टेबल हम फील्ड से लाते हैं तो अपनी कैलकुलेशन करते समय उसमें हमें कुछ प्रिजम्पशंस करने पड़ते हैं, विच इज लाइक के हमने वो फील्ड इन्वेस्टिगेशन अपने ईयर के किस पार्ट में करा है. अपने कंट्री में से हम इंडिया में हैं तो वी सी कि whether that borehole, that investigation is being done before monsoons or after monsoons, or maybe after a few months since the monsoon has elapsed, या कोई ओकेजनल हैवी शावर्स हो गई हैं. तो व्हाट आई मीन टू से कि हम अपनी कैलकुलेशंस में वाटर टेबल का एक पोस्ट मॉनसून राइज असम्पशन करते हैं, जो कि ये हो सकता है. एंड इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बेस्ड ऑन कि हमारी साइट के नियर विसिनिटी में कोई वाटर बॉडी तो नहीं थी, कोई फ्लोइंग वाटर चैनल तो नहीं था, कोई अनड्यू सीपेज फ्रॉम बीनीथ तो नहीं था, एज वेल एज द टाइप ऑफ सॉइल. क्या है कि क्ले ज़्यादा परमेबल सॉइल होती है, सैंड कम होती है, तो वहाँ की स्ट्राटिग्राफी कैसी है, रॉक है, रॉक में फॉल्ट्स हैं, फिजर्स हैं, या मैनी मोर रीजंस. तो a geotechnical engineer has to use his past experience and all these factors before deciding the final water table to be assumed for the calculation purposes. May it be bearing capacity from shear criteria or may it be bearing capacity from settlement criteria. Now वाटर टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस कैलकुलेशंस इज कि जो हम सरचार्ज ओवरबर्डन क्यों कैलकुलेट करते हैं, विच इज गामा डी. बेसिकली गामा इज द डेंसिटी ऑफ द सॉइल एंड डी इज द डेप्थ. तो इसमें हमारी पोजीशन ऑफ वाटर टेबल के हिसाब से गामा को हम -1 कर देते हैं उस सरचार्ज को निकालते समय उस वाटर टेबल पोजीशन के नीचे. नंबर 2, जब हम बेयरिंग कैपेसिटी वर्कआउट करते हैं तो W' एक वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर होता है जो हमारे IS 6403 1981 में दिया हुआ है. IS 6403 1981. अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बताया है कि IS 1892 में वाटर टेबल का रेफरेंस है, और हमारे सॉइल में जब भी कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो ये आता है कि हमारा
ऑन साइट भी जब हम वाटर टेबल मेजर करते हैं तो वहाँ जो फ्लक्चुएशन आया वो भी हमें मेजर करके लाना होता है। फिर कैलकुलेशन करते समय सर्टेन वाटर टेबल वैल्यू हम अज्यूम करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो उस वाटर टेबल की पोजीशन अगर हमारे अज्यूम्ड डायमेंशंस ऑफ फाउंडेशंस के हिसाब से, जिसमें df इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, b इज द विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, if that water table is being encountered at or above the foundation depth df, then this value is to be taken as 0.5. If this water table is being found at a df plus b meter below natural ground level, that is the depth of foundation and the width of the foundation, then it has to be taken as 1. And if it is found in between df and df plus b, then it has to be interpolated while calculating the bearing capacity of that very particular foundation type, जो कि हमारे इस कोड के हिसाब से उसका थर्ड फैक्टर में w डैश, इट इज बेसिकली एन इक्वेशन जिसमें 3 हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो थर्ड फैक्टर में w डैश इनबिल्ट होता है जो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। नाउ जब हम सेटलमेंट कैलकुलेशंस पे आते हैं क्ले लेयर की, तो इस वाटर टेबल का जो अज्यूम्ड वाटर टेबल का रोल है वो हमारा P0 इफेक्टिव स्ट्रेस, या जिसको आप कहते हैं ओरिजिनल प्रेशर एट दैट वेरी पर्टिकुलर लेवल ऑफ द क्ले लेयर, चूँकि हम अपनी लेयर्स को बाइफरकेट करते हैं सेटलमेंट कैलकुलेशन के समय, क्ले सैंड जो भी आ रहा है, एंड डेल्टा P विच इज द इंक्रीमेंटल स्ट्रेस और द चेंज ऑफ प्रेशर एट द मिड पॉइंट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर क्ले लेयर, जिसपे हमें वो सेटलमेंट निकालना है उस पर्टिकुलर थिकनेस की क्ले लेयर का। तो इसमें भी हमारा वाटर टेबल की जो लोकेशन है उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इट्स ऑल गामा डी, इट इज ऑल गामा डी। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब हम सैंड लेयर का सेटलमेंट निकालते हैं तो एवरीबडी नोज, या मे भी हम आगे अपने लेक्चर में आपको किसी ने बताएं कि हम एन वैल्यूज के बेसिस पे जो ऑब्जर्व हमारी स्टैंडर्ड प्रेशर टेस्ट वैल्यूज हैं सैंड लेयर सेटलमेंट, जो कि इमीडिएट सेटलमेंट होता है, वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ एक करेक्शन लगता है फॉर ओवरबर्डन, करेक्शन लगता है फॉर डायरेक्टेंसी एज पर IS 2131 1981, IS 2131 1981, और मे बी रिवाइज्ड ईयर आप देख लेगा रीअफर्म कब हुआ है उसके हिसाब से। तो वहाँ हमें ये करेक्शंस लगाने पड़ते हैं। और फिर जब इस एन वैल्यू का यूसेज हम सेटलमेंट कैलकुलेशन में करते हैं एज पर IS 8009 पार्ट 1 फॉर शैलो फाउंडेशंस या पार्ट 2 फॉर डीप फाउंडेशंस, तो हमारी जो सेटलमेंट की फाइनल वैल्यू निकल के आती है, अगर हमारी वो सॉइल स्टार्टा वाटर के अंदर है तो हमें एक फैक्टर 0.5 करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है, जिसको हम इससे डिवाइड करते हैं इफ इट इज इन सबमर्ज कंडीशन। तो हमें क्या है कि एक फैक्टर इनबिल्ट करके तब हमारी वो सेटलमेंट वैल्यू सैंड की निकल के आती है। इसके अलावा जब भी हम पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशंस करते हैं तो इस वाटर टेबल का रोल होता है कंप्रेशन की कैपेसिटी निकालने में, अपलिफ्ट की या लैटरल की, तो वहाँ भी इसका रोल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड वाटर लोअरिंग एक कॉन्सेप्ट है जो एज ए लिक्विफेक्शन मिटिगेटिंग फैक्टर भी यूज होता है हमारा। इसके अलावा हम कहीं जाते हैं, हमें कोई फाउंडेशन प्रपोज करी, वहाँ ग्राउंड वाटर टेबल अप है, तो हमें उस फाउंडेशन को बनाने के लिए ग्राउंड वाटर को बेसिकली क्या करना होता है, डी वाटरिंग करनी होती है शैलो फाउंडेशंस के लिए। डीप फाउंडेशंस के लिए अलग तरीके का हमें काम करना पड़ता है। या कहीं हमारी मान लीजिए कोई रिवर बेड है जहाँ हम पानी के फ्लो को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो हम वहाँ काइजन्स बना करके हम वाटर टेबल को डाइवर्ट कर करके वाटर फ्लो को फाउंडेशंस बना देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि द वाटर टेबल, द पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल एट एनी पर्टिकुलर साइट फॉर व्हाटसोएवर स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू बिल्ड इन द रिस्पेक्टिव सीवरेजिंग स्ट्रक्चर, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है
जो कि इन पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है। मे बी कुछ पैरामीटर्स और हों जो मैं इस लेक्चर में शायद ना कवर कर पा रहा हूँ, तो आगे आने वाली मेरी सीरीज़ में रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जहाँ ज़रूरत होगी उसका मैं जिक्र करूँगा और वहाँ इसके बारे में बताऊँगा। तो मोटा मोटा जो हमारे 4 पॉइंट थे, बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट क्राइटेरिया में सरचार्ज, ओवरबर्डन, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर फॉर बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन एंड फॉर क्ले लेयर सेटलमेंट, सैंड लेयर सेटलमेंट मैंने बता दिया। पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी में इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है और दिस कैन बी यूज एज एन इफेक्टिव लिक्विफैक्शन मिटिगेटिंग फैक्टर बाय वे ऑफ ग्राउंड वाटर लॉइंग। तो मैंने आप अपने लेक्चर को कंक्लूड कर दिया। होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट वाटर टेबल का और क्लियर हुआ होगा। आई विश यू विल कीप ऑन watching, viewing, sharing and subscribing to my channel. Thank you very much.